حامد میر صاحب آج کل بڑے انقلابی ہو گئے ہیں، جب بھی ان کا شو بند کروایا گیا ہے کسی کی بھی طرف سے تو وہ پھر سچ اگلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے وہ جھوٹی بولتے ہیں۔ اب وہ پھر ڈاکٹر قدیر کی باتیں کر رہے تھے کل پرسوں ایک سیمینار میں، اور بڑے نعرے لگا رہے تھے اور اداروں کے خلاف بات کر رہے تھے کہ ادارے ایسے ہیں، اداروں نے یہ کیا، مشرف نے یہ کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سچ تب ہی کیوں بولتے ہیں کہ جب آپ کی روزی روٹی پر لات ماری جاتی ہے؟ آپ ہمیشہ ہی سچ کیوں نہیں بولتے؟ سچ بولنا چاہیے آپ کو، آپ لوگوں کے مائنڈ کو سیٹ کرتے ہیں، ٹرینڈ چینجر ہیں آپ نے جو کہہ دینا ہوتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ حامد میر صاحب ایک دفعہ 2008 کے الیکشنز کی بات ہے، تو شیخ رشید الیکشن کمپین کی آخری رات تھی ان کی، شیخ رشید کی، تو حامد میر صاحب جو ہیں یہ جناب ان کے لال مسجد کے کلپس چلا رہے تھے، اور کاف لیگ کی جو پچھلی حکومتی ناکامیاں یا کچھ ایسی پالیسیز تھیں ان کو بار بار میڈیا پہ دکھا رہے تھے ٹاک شو میں، اور الیکشنز کے وہ دن تھے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے شیخ رشید الیکشن ہارے۔ میں سمجھتا ہوں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو وجہ ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ حامد میر نے جو ان دنوں میں لوگوں کو چیزیں دکھائیں وہ بیس بنی شیخ رشید کے ہارنے کی۔ مقصد یہ ہے کہ جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں ان پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ جو بھی بات کریں ان کی بات کو سراہا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ جب شو آپ کا بند کروا دیا گیا ہے، آپ باہر آ گئے ہیں، تو اب آپ انقلابی بن گئے ہیں، ابھی پھر آپ کا شو بحال ہو جائے گا تو پھر آپ اسی جھوٹ کی ڈگر پر چل پڑیں گے۔ آپ لوگوں کو حقیقت بتائیں، آپ نے بہت پیسہ کما لیا ہے، بہت نام کما لیا آپ نے، آپ لوگوں کو حقیقت بتائیں، سچ بتائیں۔ عمران ریاض آپ سے کہیں جونیئر بندہ ہے، اور عمران ریاض تو میڈیا کی فیلڈ کا بھی نہیں تھا، یہ تو اور کام کرتا تھا بیچارہ، یہ تو بعد میں حادثاتی طور پر ادھر میڈیا کی طرف آیا، اور بعد میں میس کمیونیکیشن وغیرہ میں ماسٹرز کیا اور جو بھی آگے فردر چیزیں کی، لیکن وہ اپنی بے باکی کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے آگے اوپر گیا ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ سچ بولے گا، اویئرنیس دے گا، وہ پاپولر ہوگا، لیکن پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بندہ سزائیں بھی بھگتے گا، جبر اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ دل نہیں چھوڑنا، اور میں نے بھی دل نہیں چھوڑا، آپ بھی دل مت چھوڑیے گا۔ یہ بہت بلند حوصلے کی بات ہوتی ہے، تربیت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنا کچھ سہ کر بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دفعہ انہوں نے کہا جب لاسٹ ٹائم ان سے اغوا کیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے پیغام آیا ہے کہ اس دفعہ اگر تمہیں پکڑا تو تمہاری زبان کاٹیں گے، اور اس کی زبان کاٹ دی گئی، لیکن وہ بیچارہ ابھی بھی پرعزم ہے، جتنی جگہ وہ ہے وہ کرے گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ۔ لیکن ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس نے بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا ملک کے لیے، لیکن ہم نے اسے کیا کیا، ہم نے کتنی پابندیاں لگوائیں، ہم نے خود پاس بیٹھ کے اس سے پریس کانفرنسز کروائیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں یہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو۔ اسی طرح ڈاکٹر قدیر نے ایک انٹرویو میں سہیل وڑائی صاحب کو جو انٹرویو دے رہے تھے اسلام آباد کے F9 کے کسی پارک میں یا باہر بیٹھے تھے فٹ پاتھ پر، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی آپ بیتی بتا رہے تھے، چیزیں بتا رہے تھے، واقعات جو ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائی صاحب نے ان سے ایک کویسچن کیا کہ آپ کو کوئی ملال ہے یا کوئی پچھتاوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے لیے یہ سب کچھ کرنا، کہ پاکستانی قوم نے میری قدر نہیں کی، اداروں نے میری قدر نہیں کی، میں نے پاکستانی قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے انہوں نے ذلیل و رسوا ہی کیا۔ مجھے کہیں آنکھ کا تارا بنایا جانا تھا، ماتھے کا جھومر بنایا جانا تھا، لیکن مجھے انہوں نے غدار ثابت کرنے تک کی کوشش کی، اور امریکہ اور دیگر ممالک کے پریشر کی وجہ سے مجھ پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ تو انہوں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ وہ کوفیوں کے ریلیٹڈ تھا،
वकूफियों के साथ उन्होंने पाकिस्तान को तशबीह दी थी। तो मैं भी वो सुनकर बड़ा रंजीदा हुआ था। ऐसे ही वो बेचारे फौत हो गए, और उनकी दो से तीन बेटियां ही थी, बेटा कोई नहीं था आगे। बड़ा दुख होता है इन जैसे लोगों के साथ ये अमल होते हैं। फिर इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सारी उम्र दो कपड़ों में गुजार दी और एक छोटे से कमरे में अपनी जो है वो लाइफ गुजार दी। और वो वाहद बंदा है पाकिस्तान में कि जिस पर ट्रस्ट किया जाता था कि आप जितनी भी मर्जी चंदा दे दें, एड दे दें, वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो करप्शन की नज़र नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं लगेगा। और लाखों हज़ारों बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड में वल्दियत में अब्दुल सत्तार ईदी का नाम है। तो मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ दिल से। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। 100 साल में कोई एक अब्दुल सत्तार ईदी आएगा। तो अजीम माँ बाप की औलाद है वो। और बच्चों को जैसे संभाला पाला, लावारिस बच्चों को और नाजायज़ बच्चे जिनको ये मतलब ये जो माशरा डगर पर चल पड़ा है, वो बच्चों को जन्म देकर फिर डस्टबिन में या कहीं भी वो फेंक देते हैं। तो वो या अपने अभी इनके झूले बने होते हैं कि अगर बच्चों की आप परवरिश नहीं कर पाते या आपसे नहीं संभाले जा रहे तो आप उनको मारे मत, आप हमारे पास छोड़ जाएं, हम उनकी तरबियत करेंगे, परवरिश करेंगे। तो फरिश्ता सिर्फ इंसान के साथ हमने क्या किया कि उनके लॉकर से हमने करोड़ों रुपए चोरी किए उनके सामने। और जब उनकी डेथ हुई तो पता चला कि उनकी डेथ की वजह भी यही गम था कि मैं कौम के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ। मेरे पास क्या था, कौम का ही माल था मेरे पास, जो मैं बच्चों पर उन अदारों में लगा रहा था। एम्बुलेंस सर्विस जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, ईदी एम्बुलेंस, लेकिन वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि ऐसी एम्बुलेंस सर्विस और इस तरह का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। हमने कैसे कैसे हीरे गवाए, हमने कदर नहीं की। हम तो उनके होते लोगों की कदर नहीं करते, तो जब जो चले जाते हैं तो हमने क्या कदर करनी है। इसी तरह अनवर मसूद साहब हैं। अनवर मसूद ने तंज़ो मज़ाह में बहुत नाम कमाया है, और उन्होंने साथ में गौर व फिक्र की भी तलकीन की है, समझाया भी है, बताया भी है। लेकिन हुआ क्या, वो भी बेचारा गुमनामी में ही है। वो को बात करता है तो उसको भी थ्रेट कर दिया जाता है। तो उनसे भी इंटरव्यू हुआ पिछले दिनों, तो मैं सुन रहा था कि उनसे कहा गया कि आपको लोग क्यों याद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लोग नहीं याद करेंगे। उन्होंने कहा आपको क्यों नहीं करेंगे, आपने तो बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, मैंने करप्शन नहीं की, मैंने लोगों का माल नहीं खाया, मैंने झूठ नहीं बोला, तो मुझे लोग क्यों याद करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस बंदे ने बहुत गहराई वाली बात की है। अगर समझनी चाहें हम तो बात बहुत बड़ी कर गया है वो, कि नेक नामी और नेक इंसान को बहुत कम लोग याद रखते हैं। वो ही याद रखेंगे जो खुद अच्छे हैं। जब जमाना बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो किसी को क्या याद करेगा। अच्छे बंदे को अच्छे बंदे ही याद करते हैं। तो उसने यही कहा कि मैंने ना माल बनाया है, ना पैसा कमाया है, ना कोई ओहदे लिए हैं, मुझे दुनिया क्यों याद करेगी। मैं अनवर मसूद हूँ, मैं अनवर मसूद था, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। आतिफ असलम का भी ऐसे मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का सिंगिंग में। तो स्मीना पीरजादा के साथ शो में स्मीना पीरजादा ने उनसे क्वेश्चन किया कि वो कदर के रिलेटेड था कि ये जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनकी जो कदर है वो जाने के बाद क्यों इतनी होती है, पहले क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई कदर नहीं है कि आप, आतिफ असलम ने आगे रिस्पॉन्स किया कि ये कोई कदर नहीं है कि आप मर जाते हैं तो बाद में आपकी अहमियत पता चलती है या आपको कदर व मंजिलत दी जाती है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको आपकी ज़िंदगी में भी सराहा जाना चाहिए। आपकी लाइफ में ही आपकी कदर व मंजिलत नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको इज्जत नहीं देता, तो आपके जाने के बाद वो जो मर्जी भी करी जाए। कि जीते जी कदर नहीं होती, जीते जी कोई पूछता नहीं है। एक गरीब खानदानी है या उनका बाप था या माँ थी, तो वो गुर्बत में सारी जिंदगी निकाल दी, कभी कोई चीज़ खाई पी नहीं अच्छी। तो जब वो फौत हुआ तो उसके वो जनाजे पर और कुलों पर वो रोटियां चल रही हैं और खाने चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको सच के सहारे ही जिया जाए।
झूठ का सहारा ना लिया जाए, दिलो दिमाग को पाक साफ रखा जाए, और जिस मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है उस मकसद की पासदारी की जाए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता। कल अभी मैं और राना फजील, हम एक दोस्त के वालदा की जनाजे में गए थे, जड़ावाला से आगे गंगापुर वाली साइड पे। तो उनसे उनकी वालदा के बारे में पूछा कि ये तो माशाल्लाह सेहतमंद थी और इतनी उम्र भी नहीं थी इनकी, तो क्या मसला बना है, क्या हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि कल हार्ट अटैक हुआ इनको डे में, रात तक हम हॉस्पिटल में वगैरह में रहे हैं, तो चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद इनकी डेथ होगी रात को, तो अभी हमने जनाजा करवा दिया। मतलब ये है कि पता ही नहीं चला, आनन फानन सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, बल्कि सारा कुछ ही अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जिंदगी का तो कोई एतबार ही नहीं है कि कब आपने चले जाना है। आपकी अपनी प्लानिंग होती हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला की प्लानिंग है जो हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें सब्र तहम्मुल से, अल्लाह पर कामिल यकीन से काम लेना चाहिए और अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए। बदयांती नहीं करनी चाहिए, किसी का माल नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गालियां नहीं निकालनी चाहिए, और लाइफ को जो है वो बेहतर तरीके से हमें गुजारना चाहिए। और ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बदला लेने की बड़ी आग रखते हैं दिल में, सीने में। तो उनके मतलब तो मैं यही कहूँगा कि बदला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया जाए, और अगर आप इस काबिल हैं कि आप अगले से बदला लें तो आप बदला ही ना लें, आप उसे माफ़ कर दें। जब आप बदला लेने की हालत में होते हैं और आप उसे माफ़ कर दें तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बहुत राज़ी होती है। और अगर आप ही इंसान को या किसी भी बंदे को माफ़ नहीं करेंगे तो आप कल को अल्लाह ताला की ज़ात के आगे कैसे झुकेंगे और कैसे अल्लाह ताला की ज़ात को मनाएंगे कि आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात नहीं कहेगी कि आपने तो नहीं माफ़ किया था, आप भी तो तब खुदा बन गए थे, तो अब मैं तो हूँ ही खुदा, मैं तो हूँ ही अल्लाह, हक सच हूँ, तो मेरी मर्जी मैं आपको माफ़ करूँ या ना करूँ। जब हम इंसानों को माफ़ नहीं करते या नहीं कर सकते तो हम अल्लाह ताला की ज़ात से कैसे माफ़ी के तलबगार होंगे, उनसे किस लिहाज से, फिर कैसे किस मुंह से माफ़ी मांगेंगे। इसलिए हमें सब्र तहम्मुल, इस्तिकामत, बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, माफ़ करने की आदत को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है और अल्लाह के बंदे जो हैं वो भी खुश होते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो बिल्कुल मामूली सी है, ये ऐसे ही है जैसे हवा में दिया जलाया हुआ है। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था कि हम एक जनाजे से होकर आए, तो रास्ते में ही हमें कॉल आई कि हमारी एक कोलीग थी, बल्कि अभी भी वो 41 में न्यूज़ एंकर हैं, लाहौर अरूबा। तो उनके वालिद का एक्सीडेंट हो गया, बाइक के साथ उनकी टक्कर होगी, वो घर के बाहर ही कहीं। तो उनको सरगोदा से DHQ हॉस्पिटल ने या DHQ ने रेफ़र कर दिया अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। तो वो सिफारिश करवा कर डॉक्टर्स को बुलवाया, अरेंज करवाया, CT स्कैन वगैरह और बाकी जो मामूल के टेस्ट थे वो करवाए, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थे अंकल अभी तक। तो जब हमने पता किया कि मसला क्या बना है, हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे अब्बू घर से खाना खाकर अभी नाश्ता करके बाहर निकले हैं कि मैं ना ज़रा बाहर से होकर आता हूँ, और लेटे हुए थे, नाश्ता किया था या अभी करना था या करके बाहर गए थे, तो मैं बस अभी आया। कहते हैं अभी बाहर गए ही हैं, तो जाते ही मोटरसाइकिल के साथ टक्कर होगी और वो वहीं पर गिर गए। तो पता चला कि उन्हें फॉलेज का भी अटैक हो गया, और जो खाना था, जब वो टेस्ट वगैरह हुए, वो खाना उनके मैदे की बजाय सारा खाना उनके गुर्दों में चला गया या सांस की नाली या फेफड़ों में चला गया। तो अभी वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट उनको जवाब दे दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दुआ के सहारे ही है, इनकी ज़िंदगी के चांसेस बहुत कम है जीने के। और उन्होंने कहा ये पहले बेहोश थे लेकिन अब ये कोमा में चले गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि क्या इंसान की लाइफ है, क्या उसकी प्लानिंग है। उस बंदे ने क्या सोचा होगा कि मेरे साथ आज ऐसे हो जाना है। मैं तो खाना खा के बाहर निकला हूँ या किससे मिलना होगा, और वो कहीं जा भी नहीं रहे थे, उनमें बाइक टकरा गई, और बाइक वाला, उसे भी नहीं पता होगा कैसे ये बंदे ने बाहर निकलना और मेरा इनके साथ टक्कर हो जानी है, उसकी भी टांग टूट गई या जो भी हुआ।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی لائف ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں جلتا ہوا چراغ، جس کی حفاظت سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہم نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کی لائف بہت مختصر سی ہے، اس کو اچھے سے ہی یوٹیلائز کرنا چاہیے، جینا چاہیے، اور دوسروں کو معاف کر کے آگے بڑھا جانا چاہیے۔ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہوگا